Good. So let me bring this completely formalities. So one more round of applause for coming and sharing your. Thank you very much for coming and sharing your experience, because he straight away traveled from Surat for only 15 minutes presentation. So thank you very much once again from all of us. Now we have one more participant, or you can say speaker from Vadodara. He's Mr. Hitesh Mali. He's one of the leading business consultants, and you can say veteran equity. I'm not getting the right word, but it is one of the person people would like to listen, would like to learn from him. So let's have a big round of applause for Hitesh bhai. वो भी बता देंगे. Good afternoon. Voice is audible? Yes. Without mic? Yes. Okay. Thank you very much, and thank you very much for giving me your 20 minutes valuable time. It's already 4 o'clock Sunday. बाहर काफी कुछ मौसम भी बन चुका है. It's raining. So difficult to discuss about the financial matter. Myself, Hitesh Mali, I am a strategic consultant to Motilal Oswal Financial Services. So this room is not new for me. On an average, every Friday, Saturday, I am using this both the rooms for our training. I am consultant for the Motilal Oswal franchise business. I am doing a lot of seminars and training program for the HDFC Mutual Fund, Birla Mutual Fund, SBI Mutual Fund. The only difference between the you guys and me is you are more knowledgeable, you are more degree holder, and maybe the wealth wise you are more wealthier than me. But the difference between you and me, that is something about the experience. Last year, in last 365 days, I met more than 25,000 on an average investor. I met on an average 4,000 individual financial advisor. I met on an average 2,200 sub-brokers across India. सिर्फ पिछले 365 days में 48 towns और cities में घुमा. So we'll share lot many things in 20 minutes. Is not a difficult time to explain. So we'll try to explain the 3 important things: the opportunity in the India about the financial planner. Second, and the most important thing, the role of the financial planner. That is, I think, the most important thing. So we'll discuss about the opportunity unlimited first, and the important. By the way, disclaimer is all about. It's not something about I am a purely equity guys, but any of my discussion is not advising कि equity is one of the best class or insurance FD कुछ अच्छा नहीं है. This is related to your choice कि आपको जो चीज अच्छी लगे करना. Why financial planning? This is the most important thing. Money management. India needs a money management. That is a sure. Up to 1992, India में एक ही चीज popular थी. That was a bank FD and the post office scheme. 1992 के बाद हर्षद मेहता नाम का बंदे ने एक चीज सिखाई, that is a equity. एक और asset class है. From 1997 we learn a third thing, that is a mutual fund. By 2005 we learn a third asset class, that is a real estate. By 2007 and 8 we learn a fourth asset class, that is a gold and silver. तो इंडिया में लोग confused है कि which asset class is the best asset class. 125 crore population. Out of 125 crore population, the 29% populations are below age group of 15. सर ये आपके लिए बहुत बड़ी लॉटरी है. 30 से 35 करोड़ population below age group of 15 है. The youth power, that is the real power for the India. So first power is the youth power. That is, I am talking about the India, the land of opportunity in terms of the financial planner. Second is a woman power. 10 years back, only 4% working woman in India. The current data is 14% working woman. Global average is 23%. China, 54%.
सर बाय 2020 वी आर एक्सपेक्टिंग कि इंडिया में ये 25 से 30% हो जाएगा वर्किंग वुमन परसेंटेज. दिस इज वन ऑफ ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर द फाइनेंशियल प्लानर. और अमेजिंग साथ में एक चीज क्या है कि 25 से 30% तो ये आपकी वुमन पावर हो जाएगी इन वर्किंग स्टाइल. बट 10 years back, India is not passing through only economical change. The first time in India, in the history of India, India pass हो रहा है, that is something about a socio-economy change. Society बदल रही है. और 10 years back, मेरे पास 22 साल का experience है for the financial market. और 10 years back, the amazing experience was कि अगर कोई भी lady को मिलते थे before marriage, तो उनका investment decision कौन लेता था? Husband. After marriage? Before marriage? Parents. After marriage? Husband. सर आज की तारीख में ये थोड़ा बहुत बदलने लगा है. Now women are taking the own individual decision. और मुझे लगता है कि 3 साल बाद तो 100% independent हो जाएगा. So huge opportunity in the terms of India opportunity. So one is a youth, second is a woman, और third power that is a rural power. जो गांव में पैसा है मुझे लगता है कि इंडिया में कहीं पे नहीं है. मुंबई, बेंगलोर, पूना, दिल्ली, चंडीगढ़ ये सब क्रेडिट कार्ड वाली इकोनॉमी है. अगर रियल कैश चाहिए, वेल्थ, बैंक बैलेंस चाहिए तो आपको बड़े सिटी में मिल जाएगी. बट इफ यू आर फोकसिंग ऑन अ वेल्थ, पैसा अगर देखना है, प्रॉस्पेरिटी देखनी है, देन यू हैव टू विजिट अ रूरल एरिया. ये 3 जो कैटेगरी है वो इंडिया को बहुत जोर से बदल देगी. दैट इज द अपॉर्चुनिटी विद द इंडिया. आपको लगता है मोदी साहब या तो कोई गवर्नमेंट ये देश को बदलेगी? सर ये देश को 3 पावर बदलेंगे. वन इज अ यूथ, सेकंड इज अ वुमन एंड थर्ड इज अ रूरल. उनके सामने अगर देख लो कि दूसरी एक अपॉर्चुनिटी क्या है. व्हाई द फाइनेंशियल प्लानिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. बाय द वे माय फर्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, अर्निंग के लिए हमारे पास 2 चॉइस है. वन इज अ जॉब एंड सेकंड इज अ बिजनेस. ये 2 चीज के लिए कितना टाइम देना पड़ता है? 125 करोड़ पॉपुलेशन, ये 2 काम अगर करना है तो कितना टाइम देना पड़ेगा? आउट ऑफ 24 आवर्स 8 hours, then 8 to 10 hours, 4 to 5, then yeah, 20% of the time. 20%. Okay, then sir, as per my experience, now India badal chuka है. It's convert into a digital India. The only problem which as a businessman or as a employee we are facing कि डिजिटल इंडिया हो गया. आपका ईमेल बॉक्स भी अभी कहाँ पे है? मोबाइल पे. बंदा अगर गलती से भी रात को 12-1 बजे उठ गया, और उठने वाला बंदा सबसे पहला काम क्या करता है? मोबाइल चेक करता है. और मोबाइल में कोई कस्टमर क्वेरी आ गई तो रात को 1 बजे उसको नींद नहीं आती. दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट अ बिजनेसमैन. बट दोज हु आर डूइंग अ जॉब, उनके लिए तो डबल खतरा है. 2 मेल आ सकती है, वन फ्रॉम द क्लाइंट एंड सेकंड फ्रॉम द बॉस. So this is the real India story कि इंडिया में जो भी बंदा जी रहा है either through a business or job, उनकी लाइफ में 24 hours. For earning they have to spend minimum 24 hours. Now second question to all of you, what about spending? कितना टाइम देना पड़ेगा? कितना टाइम देना पड़ेगा? 4 minutes, then सर मुझे लगता है आप लोग सुबह 10 बजे से यहाँ पे बैठे होंगे तो अभी आज आपका मीटर तो कहीं चल रहा होगा. बिलीव मी, ये इंडिया के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है. एंड दिस इज वंस अगेन ए सीरियस थिंग फ्रॉम फाइनेंशियल प्लानिंग. द ओनली प्रॉब्लम इज कि अर्निंग के लिए 24 आवर जाता है और स्पेंडिंग के लिए 0 सेकंड. अगर आपको डाउट लगता है तो 6 महीने घर में बेडरूम में लॉक करके बैठे रहना, आपका खर्चा बढ़ जाएगा. एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, माय कमिटमेंट टू ऑल ऑफ यू, मोदी साहब ने बोला है आपके अच्छे दिन आने वाले, बट मैं आपको सामने से बोल के रखता हूं, अच्छे दिन आएंगे तो भी ऑन मंथ बेसिस ईच एंड एवरी इंडियंस की खर्चा बढ़ने वाला है. दैट इज फॉर श्योर. फॉर नेक्स्ट 10 years, नॉट 15 years, नेक्स्ट 25 years. खर्चा बहुत बढ़ जाएगा. द बेस्ट एग्जाम्पल, लास्ट ईयर पेट्रोल और डीजल प्राइस 10 रुपीज डाउन हुए ऑन एन एवरेज. हमने बहुत सारे लोकेशन पे सर्वे किया. द सीरियस मैटर कम आउट इज कि 10 रुपया लीटर पेट्रोल डीजल कम हो चुका है, बट द मंथली पेट्रोल एंड डीजल एक्सपेंस आर इंक्रीजिंग. द रीजन इज बहुत सस्ता हो गया. हम कल संडे सुबह तो लोनावाला ड्राइव पे जाएंगे.
So this is something about India में क्यों हो रहा है? 10 years back, Indians focusing only on a basic needs. इंडिया के लिए एक ही चीज थी, पैसा कमाओ, और बाद में 3 चीज वो ध्यान में रखता था, रोटी, कपड़ा और मकान. But now Indians is focusing on a रोटी, कपड़ा और मकान, but उसको चाहिए डोमिनोज की रोटी, एलन सोली का कपड़ा, और जो घर चाहिए उसके बाद स्विमिंग पूल होना चाहिए. So 10 years back as an Indian we were focusing on our basic needs. Now it's converted into a lifestyle. Sir, ये lifestyle पे इंडिया आ चुका है. The best example, a day before yesterday, Economics Times की front page की front news क्या थी? Any idea? No, a day before yesterday. Threat from Ola. No, no. Ola is once again important thing, but उसके भी पहले वाले दिन थी. Apple iPhone 6s लॉन्च हुआ है. वो कितने में बुकिंग स्टार्ट हुआ है? 1 लाख. सर प्री मार्केट में 1 लाख में ऑलरेडी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है. माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू के जो खरीदने वाला बंदा है वो उसका फीचर्स देख के इतना जल्दी में है? नहीं. Then why they are buying? Apple status. लाइफस्टाइल सर. कि कल केयूर भाई ने कॉन्फ्रेंस रखा है, वहां मैं क्या लेके जाऊंगा? 6s. सर एज पर द सर्वे इंडिया में जो 40,000 से ऊपर के जो भी स्मार्टफोन बिकते हैं, the 80% users are not using the actual features of the mobile phone. Why they are using? Status. सर ये लाइफस्टाइल इंडियंस को पागल कर देगी. इंडियंस आर फोकसिंग ऑन द basic needs. जब मैं बात करता हूँ, then somebody as a senior person in one of my last event in Lucknow, he was asking me कि boss India तो still is a poor country. I am agree कि India is a poor country. Per capita income per person is $1,400. We are expecting by 5 years, next 5 years, it will become $2,500. क्यों? कल संडे मॉर्निंग एक चीज ट्राई कर लेना. सॉरी आज टुडे इज संडे. कल मंडे मॉर्निंग एक ट्राई कर लेना. कॉन्टेक्ट योर चार्टर्ड अकाउंटेंट मिल जाएगा, कॉन्टेक्ट योर डॉक्टर मिल जाएंगे, कॉन्टेक्ट योर इंजीनियर मिल जाएंगे. बट कल सुबह 10 बजे प्लम्बर्स को ढूंढना, इलेक्ट्रीशियन को ढूंढना, कारपेंटर को ढूंढना. द स्किल लेबर. इंडिया में स्किल लेबर की बहुत जबरदस्त डिमांड है. नाउ अमेजिंग पार्ट इज कि कल तक आज आप टैक्सी में बैठते हो तो यू कैन नॉट से कि जो चलाने वाला आदमी है वो ड्राइवर है. मे बी ही इज द ओनर ऑफ द कार. सर इंडिया एक बहुत बड़ा सोशल चेंज से है. आज हर एक बिजनेस एक रिस्पेक्टेड बिजनेस में कन्वर्ट हो रहा है. सो इंडियंस आर अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू बहुत पैसा बन रहा है. बट एट द एंड ऑफ द डे दे बिलीव्स इनटू ओनली वन थिंग, दैट इज अ लाइफस्टाइल. सर मेरी इतनी ट्रैवल रहती है, इधर मैं 2 लोकेशन पर रहता हूँ. वन इज एयरपोर्ट एंड सेकंड इज अ रेलवे स्टेशन ऑन एन एवरेज एवरी डे. लोग बोलते हैं इंडिया गरीब एकदम पुअर कंट्री है. अगर इंडिया में गरीब पुअर लोगों को देखना है, देन यू हैव टू विजिट अ रेलवे स्टेशन. वहाँ पे सबसे पुअर लोग रहते हैं. बट द अमेजिंग पार्ट इज कि वो पानी यूज करता है रेलवे का, बट उसके बाजू में एक पाउच रहता है, छोटा पाउच नहाने के लिए. विच वन? क्लिनिक प्लस. दिस इज द लाइफस्टाइल. Indians are focusing on the lifestyle. They are day by day become crazy about the lifestyle. और सामने 2 चीज जो लोगों को समझ में, recently in one of my seminar, this is the best example कि why India need a CFP. Recently in one of my client seminar, एक बंदा मुझे मिला 44 years का था. डिनर टाइम में मुझे पूछना है, it is my yearly monthly salary is 4 lakh rupees. Now 4 lakh is a good amount. 48 lakh rupees yearly is a good amount. मैं बोला प्रॉब्लम क्या है? बोले मेरा 4 लाख का सैलरी है, बट एट द एंड ऑफ 25th समझ गया ना सबकी प्रॉब्लम. 25 तारीख के बाद बैंक बैलेंस नहीं रहता है. द ओनली रीजन इज मिसमैच बिटवीन अर्निंग एंड स्पेंडिंग. एंड द ओनली प्रॉब्लम इज द बेस्ट एग्जांपल, अ डे बिफोर यस्टरडे इंडिया का लीडिंग म्यूजिशियन अजय श्रीवास्तव सर, वंस अपॉन ए टाइम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट musician, or he was facing a lot of financial crisis in the last 2-3 months. This is the basic need कि why the earning and spending. और दूसरे सामने 2 चीज है, that is a once again a serious चीज. Indians को समझ में नहीं है difference between saving and investing. उसको 2 चीज समझ में आ गई, one is a earning and second is a spending. But the most serious thing, उसको 2 चीज समझ में नहीं रहा है, difference between saving and investing.
और उससे भी ज्यादा सीरियस चीज है सर, फोटो क्लिक मत करो, केयूर सर को बोल देना, मैं स्लाइड आपको भेज दूंगा। बिकॉज मैं इंडिया में एक ही चीज बिलीव करता हूँ, आई एम फोकसिंग ओनली ऑन वन थिंग, दैट इज अ फाइनेंशियल एजुकेशन। इंडिया इज पॉपुलर फॉर ओनली टू एजुकेशन, one is a school education and second is a religious education. But as a Hitesh Mali, I strongly believe in a third education, that is a financial education. And as a financial advisor, you are responsible for the same. सर आपको पैसा बनाना है, but you have to focus only on a one thing, that is a financial. Recently I met one of a senior doctor, age 54 years. उनका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो था 1.55 करोड़, HNI कैटेगरी, डॉक्टर कैटेगरी, 52 इयर्स। ये चीज बोल रहा हूँ बिकॉज ऑलवेज इन आवर सोसाइटी वी बिलीव के डॉक्टर बहुत होशियार लोग होते हैं, इसके लिए उनका एग्जांपल दे रहा हूँ। वो मीटिंग में बोले थे, सब लोग बोल रहे हैं म्यूचुअल फंड में लास्ट ईयर रिटर्न वाज 20, 30, 50, 60, 80%, बट मेरा पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रहा है। मैं बोला सर नहीं हो सकता है, आपने कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा स्कीम भी खरीदा होता है ना लास्ट ईयर, तो पैसा तो बनाया लास्ट ईयर। बोले मेरा नहीं बना। मैं बोला सर एक काम करो, मेल कर दो आपका स्टेटमेंट। दूसरे दिन मेल आया, 1.55 करोड़ ही इन्वेस्टेड इनटू डेट म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड। और उनकी कंपैरिजन कहां पे चल रही थी? इक्विटी। नेक्स्ट डे उनको मालूम पड़ा कि ऐसे भी दो चीज होती है। सर दिस इज द रियल प्रॉब्लम, कि सेविंग वर्सेस इन्वेस्टिंग, this is the real problem. As an Indian we are facing a one serious problem. Investor आके हमें पूछते हैं कि सर अभी बैंक FD करूँ या इक्विटी म्यूचुअल फंड मारूँ? You cannot compare gold with a equity mutual fund. You cannot compare insurance with a real estate. इंडिया में दो चीज लोगों को समझ में नहीं आ रही, one is a physical asset and second is a paper asset. Try to focus on a paper asset, sir. This is the huge opportunity. इंडिया में दो ही चीज लोग समझते हैं, बिकॉज ऑफ इमोशनल अटैचमेंट विद अ फिजिकल एसेट। उसको घर दिखता है, उसको सोना दिखता है, सो ही फील्स कंफर्टेबल कि लॉस आएगी चलेगा, बट सामने तो दिखता है, बट दे आर नॉट कंफर्टेबल विद द डेट फंड, म्यूचुअल फंड, इक्विटी, एनी अदर पार्ट। सो ट्राई टू फोकस, ट्राई टू एजुकेट देम कि सर, काफी लोग मुझे पूछते हैं कि विच वन इज बेटर, गोल्ड, FD या इक्विटी म्यूचुअल फंड और रियल एस्टेट, which one is better? My question to all of you. सर मैं उनको एक ही रिप्लाई करता हूँ कि this is one of the best question I can judge through this thing. मैं क्लाइंट अगर मुझे पूछता है कि which one is the best one, बैंक FD और इक्विटी म्यूचुअल फंड, तो my reply is कि सर मैं यहाँ से नहीं देख सकता हूँ। If you are comfortable with Nokia Asa, but you are using a Samsung Galaxy, then you have to focus on this product. Simple shit. I am not against the insurance or FD products, sir. But the only problem, see, मेरी लाइफ में एनजे वाले भी मेरी काफी इवेंट सुनते हैं। मैं कभी भी मार्केटिंग, मेरी एक भी टैगलाइन में देखना कि मैं कभी पीपीएफ को इक्विटी म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर नहीं करूं। पीपीएफ इज वन ऑफ द बेस्ट, इज अ सिक्योर एंड सेफ एंड कंफर्टेबल एसेट क्लास। बट अमेजिंग पार्ट ये है कि इंडिया में लोग एक ही चीज बोलते हैं कि व्हाई वी आर इन्वेस्टिंग इनटू अ पीपीएफ। उनका एक ही रिप्लाई है कि रिटायरमेंट में काम आएगा। नहीं, रिटायरमेंट। और दूसरा रेशियो ये आ रहा है कि 67% अकाउंट अपने नॉमिनी को ट्रांसफर करते हैं इंडिया में। So they are not using the funds in the entire life. और अगर उनकी जनरेशन को ही देना है, then they have to focus on a next product. Okay. Just to add, 3,000 crores are unclaimed in PPF. Yeah, exactly. And second most important, by the way, ये इन्वेस्टर को भी समझाना कि these are the product, और product is as per the need of the individual customer. अगर बंदे की घर पे शादी है तो of course FD is one of the best thing. Insurance. इंडिया में बाय द वे एक नंबर भी फिगर्स दे देता हूं। इंडिया में नंबर ऑफ रजिस्टर्ड सब ब्रोकर्स आर 3000, नंबर ऑफ रजिस्टर्ड सब ब्रोकर 42,000, म्यूचुअल फंड एजेंट्स 1 लाख, इंश्योरेंस एजेंट 25 लाख, बट स्टिल इंडिया इज अ अंडर इंश्योर्ड कंट्री। तो समझ लेना सर, इक्विटी और म्यूचुअल फंड में लोग कितने थे। एज पर माय सर्वे लास्ट ईयर आई वाज इन अ CFA एनुअल कॉन्फ्रेंस एट सिएटल फॉर 6 days। मैं खुद CFP नहीं हूँ,
बट मेरा शौक ऐसे सब है कि कुछ जानना और लोगों को मिलना. I met lot of CFA personality in Seattle, USA last year. ये बार भी हो रहा है बॉस्टन में from 26-27 से. सर ये इंडिया need 5 to 10 lakh financial advisor by 2020. That is the opportunity with the India. Sir, this is the opportunity. By 5 lakh to 10 lakh. इंडिया में एक ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है कि सब लोग जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, either one is experts, he is master in a FD, one is master in a gold, second is master in insurance, third is master in real estate, and fifth one master in a equity. अगर वो बंदे के पास जाते हो तो एनी टाइम वो लाइफ में एक ही चीज बोलता है, which one is better? इंश्योरेंस. मेरी 2 दिन पहले एक मीटिंग थी, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम. वो बंदा इंश्योरेंस का बहुत बड़ा काम करता है, तो एडवांस में मुझे हिंट दे रहा था 2-3 बार, हितेश इंश्योरेंस के आगे इसमें कुछ मत बोल. I am doing a lot of client event. मेरा दिल्ली में इवेंट था. He was one of the best player of the real estate. बोले हितेश एक भी बार रियल एस्टेट में मंदी की बात मत कर. So this is the वैसे Indian we are facing a lot of problem. My request to all of you, please focus on a need of the client, not your need, not your knowledge. Generally, मैं इंडिया में एक ही चीज में बिलीव करता हूँ. मैं कहीं पे भी ट्रैवल करता हूँ, लोगों को पूछता हूँ कि which language is comfortable for the seminar? हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, मराठी. By the way, which language is preferable? Which language? Try to use only one, no local language. Try to use only one language as a financial advisor. That is a business language. That's it. Business language is a language के सामने वाले को क्या चाहिए वो समझाना. That is a business language. My dear friend, 99% financial planner or business partner, they are continuously focusing on only own language. वो सब छोड़ दो, इंडिया में कुछ नहीं चलने वाला है, एक ही चीज चलने वाली है, the need of your customer. So this is the opportunity. Why the financial planning? This is the opportunity. Okay, now one is a consumer market, and third one, financial planner के लिए इंडिया में opportunity बढ़ेगी. उसका एक ही reason है. 10 years back, as a India as a country, we are popular as a job-based class. इंडियन के लिए एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट था कि इंडियन का मतलब जॉब क्लास. सडनली आफ्टर 2010 इंडिया को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है. इंडियंस आर स्लोली कन्वर्टिंग इनटू अ एंटरप्रेन्योर. अब रतन टाटा साहब को सुन लो. एग्जैक्टली 15 डेज बैक अमेजिंग इंटरव्यू कि यूएसए में जो 1960-70 में हुआ था. बाय द वे 1960 and 1970 was one of the main breakout year for US तेजी. USA की जो शाही जो है इतनी बड़ी शान है वो स्टार्ट हुई थी 1960-70 से. रतन टाटा साहब बोल रहे हैं कि 1960-70 में मैंने जो USA में देखा था ना, the same thing मैं अभी इंडिया में देख रहा हूँ from 2014-15. Entrepreneurship will be a next opportunity for the India. और जैसे लोग एंटरप्रेन्योर बनेंगे, that time they need a strong financial advisor. इंश्योरेंस. इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? आदमी अगर 1 करोड़ का भी इंश्योरेंस लेता है तो उसको लगता है मैंने 1 करोड़ का इंश्योरेंस ले लिया. उसको खुद की लाइफ समझ में नहीं आ रही. द बेस्ट एग्जांपल, रिसेंटली मेरी इंश्योरेंस फाइल बन रही थी. द बेस्ट एग्जांपल मेरा खुद का दे रहा हूँ. तो ऐसे ही मैं जब पढ़ने बैठा कि भाई अभी रिटर्न क्या फाइल करना है, तो अमेजिंग पार्ट, मेरे पास 2 गाड़ी है, उसका जो ईयरली इंश्योरेंस है इज हायर देन माय फैमिली मेडिक्लेम. माय कार इंश्योरेंस इज हायर देन माय फैमिली मेडिक्लेम. तो मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट कौन है? अभी सर समझ लो इंडिया कहाँ जा रहा है. लोगों को लगता है कि 10 साल पहले 50 लाख का इंश्योरेंस ले लिया तो बस लाइफ खत्म. मेरे पास बहुत, मैं बड़े बड़े लोगों को मिलता हूँ, बोलता है मेरे पास 2 करोड़ का इंश्योरेंस है. 2 करोड़. फिर उसकी लायबिलिटी देखने जाए तो 4 करोड़ का लोन खड़ा हो, 6 करोड़ का फ्लैट खरीद के बैठा. See, this is the only thing that is the require कि इंडिया में जब लोग एंटरप्रेन्योर बनेंगे तब उनको बहुत बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत पड़ेगी. सो दिस इज द वंस अगेन अपॉर्चुनिटी. एंड फाइनली रोल ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर, जो मेरा एनजीओ वाले बंदे का, आपका नाम क्या है सर?
श्रीनिवासन, ओके, श्रीनिवासन ने ये भी सीख लिया, बट एक सीख के रखना इंडिया में बस इतना ही। Indians are famous for only one mindset, role of financial advisor. So you are not an advisor, you are not a financial consultant, you are a mentor to your client. Convert yourself from advisor word to a mentor. Advisor एक चीज ध्यान में रखना, हम लोग जब बच्चे थे ना, this is something a human behavior analysis. अगर हम लोग छोटे थे और डैडी ने गलती से एक बार या मम्मी ने एक बार गलती से बोला कि बेटा तू हिंदी में अच्छा नहीं है, हिंदी पढ़, हम वो पढ़ेंगे कि उसको अवॉइड करेंगे? क्यों अवॉइड करेंगे? मम्मी ने बोला क्यों, बस। दिस इज द ह्यूमन माइंडसेट। अगर जो बंदा एडवाइस देता है ना, उससे उल्टा करो। सो बेसिक लर्निंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ आवर लाइफ, डोंट एडवाइस टू एनीवन। Try to become a mentor. You know the difference between an advisor and mentor? Yes. You know the difference between advisor and mentor? Advisor लाइफ में एक ही चीज बोलता है, बेटा ये कर, बेटा ये कर, बेटा ये कर, बेटा ये कर। बेटा लाइफ में नहीं करेगा, गारंटी से बोल कर। और मेंटर का मतलब है करवा के नहीं करता है, वो खुद कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐसी करता है कि जहां से वो बंदा इंस्पायर्ड होता है। To inspire your client, that is your responsibility. To advise your client, it's not your responsibility. मैं 80% लोगों को देखता हूँ, वो कंटिन्यूस एडवाइस करते हैं। डोंट एडवाइस टू योर क्लाइंट। काफी लोग तो क्या है, अभी नए नए बिजनेस में आए और HNI क्लाइंट को मिलने जाते हैं और वहां पे एडवाइस देते हैं। सर उसके पास ऑलरेडी 50 करोड़ है, तो मेरे से तो होशियार होगा ही। दैट इज अ क्लियर मैटर। उसके पास दे नीड अ मेंटर, दे नीड अ पार्टनर, they need a partner for the managing the wealth। और इंडियन के पास the most amazing thing जो ये यहाँ पे बैठे हुए लोगों के पास भी है, one is the most popular mindset, that is a collective mindset। Sir, you know the definition of collective mindset? Collective mindset? कलेक्टिव माइंडसेट क्या मतलब है? सर ये माइंडसेट सीख लो, माइंडसेट की गेम है। You are not in a business of a financial product. You are in a game of a mindset. This business is all about a mindset. सर ये टावर खड़ा हुआ है ना, मोतीलाल जी को मैं बहुत सालों से जानता हूँ। ये टावर भी जो बन गया है ना, they started this company in 1987 as a 2 boss with a 1 peon। और 0 लेवल से स्टार्ट किया हुआ कंपनी टुडे इज अ 13 फ्लोर बिल्डिंग, इज अ लिस्टेड कंपनी, 4500 करोड़ मार्केट के। सर मोतीलाल जी की सक्सेस, मेरी हर एक इवेंट में, हमारी जो यहाँ पे इवेंट चलती है ऑन एन एवरेज सैटरडे, उनमें उनका एक लेक्चर होता है, तो मैं काफ़ी टाइम से उनको सुनता हूँ। मोतीलाल जी और रामदेव जी की सक्सेस इज नॉट ड्यू टू द मार्केट और नॉट ड्यू टू द बिजनेस प्रैक्टिस। उनकी सक्सेस एक ही चीज से, द ओनली थिंग, दैट इज अ माइंडसेट। सर आपके साथ डिग्री है, उसके साथ आपका माइंडसेट चाहिए। द इंडिया का एक ही पॉपुलर माइंडसेट है, दैट इज अ कलेक्टिव माइंडसेट। एंड कलेक्टिव माइंडसेट का बेस्ट एग्जांपल है आजकल, व्हिच वन? व्हाट्सएप। व्हाट्सएप में अगर कोई चीज आ गई तो बोले उसको पहले स्प्रेड करो। हम लोग पढ़ते नहीं, उसको पहले क्या करते हैं? और आजकल तो इतने मास्टर हो गए ना, ग्रुप बनाओ, ग्रुप में डालो, जल्दी आगे जाएगा। सर 3 चीज से दूर रहना, माय एडवाइस टू ऑल ऑफ यू। नो डाउट हम लोग भी काफी बार मीडियाज में आते हैं, बट माई रिक्वेस्ट टू, सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अगर अगले 5, 10, 15, 25 साल में देश में बहुत पैसा कमाना है, देन यू हैव टू अवॉइड 3 थिंग। वन इज अ सोशल मीडिया, सेकंड इज अ प्रिंट मीडिया, एंड थर्ड इज अ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, because they three business are depends on the TRP activity। और as per the human behavior analysis, अगर TRP को increase करना है तो वो न्यूज नेगेटिव होने चाहिए। That is the human behavior analysis। अगर पॉजिटिव बात हुई ना तो लाइफ में कभी वो स्प्रेड नहीं होगी। That is the rule। और जब वो आप सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हो, व्हाट्सएप पढ़ लेते हो, आप टीवी चैनल देखते हो, तो अल्टीमेटली दिस इज समथिंग अबाउट ए एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। आज जो अभी जो सेमिनार हमारा जो इंटरेक्शन चल रहा है, दिस इज नॉट समथिंग अबाउट आई एम गिविंग अ लेक्चर टू ऑल ऑफ यू, आई एम ट्रांसफॉर्मिंग माय एनर्जी इनटू यू। सेम वे आपका भी रोल वही रहेगा, जब क्लाइंट के सामने बैठते हो ने, यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी इनटू योर क्लाइंट। और सुबह सुबह आप न्यूज़पेपर पढ़ लेते हो, ये पढ़ लेते हो, और नेगेटिव चीज आप में एंटर हो जाती है, और फिर आप कहाँ जाते हो? 9 बजे मैडम क्लाइंट को मिलने। क्या होगा फिर? वही होगा। सर ट्राई टू अवॉइड द कलेक्टिव माइंडसेट, वन ऑफ द रिस्कीएस्ट। 90%
सर इंडिया के बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ कि जहाँ पे बहुत बड़े बड़े इंडिया के एडवाइजर है, बहुत बड़े नहीं, सब लीडिंग एडवाइजर वो ग्रुप में। सुबह उठ के मैं जनरली, मेरा एक सर्वे रहा है कि आधे घंटे वो लोग नेगेटिव डिस्कशन करते हैं एवरी डे। इंडिया का लीडिंग एडवाइजर ग्रुप का मैं नाम बोलता हूँ, जो ग्रुप में मैं हूँ, खुद हूँ। बड़े यानी मोर देन 100 करोड़ म्यूचुअल फंड है। बट एवरी डे मॉर्निंग अगर एक बंदे ने कोई नेगेटिव न्यूज डाल दिया, देन स्टार्ट डिस्कशन। सर ट्राई टू अवॉइड अ वन माइंडसेट दैट इज अ कलेक्टिव माइंडसेट। इन्वेस्टर के दो माइंडसेट बन चुके, वन इज अ फिक्स माइंडसेट एंड सेकंड इज अ डिफेंसिव माइंडसेट। सर इंडिया में अगर आपको अगले 10, 15, 25 साल रहना है, देन यू हैव टू बी आउट फ्रॉम दिस टू माइंडसेट, फिक्स एंड डिफेंसिव माइंडसेट। As an Indian or as an Indian financial advisor, you have to convert your mindset into only two mindset. One is a productive and second is a growth. सर आपका क्लाइंट के सामने बैठ के आप दो ही चीज कर सकते हो, one is a productive and second is growth. सर मैंने ऐसे एडवाइजर देखे हैं कि क्लाइंट से ज्यादा वो डिफेंसिव हो चुके हैं। और सर अभी जो यूथ आने वाली है ना, सर एक चीज साथ ध्यान में रखना, अभी जो आपके नेक्स्ट जनरेशन क्लाइंट आपके सामने आने वाला है ना, वो एक ही लैंग्वेज में बिलीव करते हैं। विच लैंग्वेज? आपकी जो नई जनरेशन, नए क्लाइंट्स जो आपके सामने आएंगे, जो मैं समझ रहा हूँ 5 से 10 करोड़ लोग आने वाले हैं विद इन 3 to 4 years आपकी बास्केट में। सर ये यूथ क्लाइंट जो आएंगे बाजार में, यानी बाजार मीन्स टॉकिंग अबाउट इंश्योरेंस, FD, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट। सर उनके पास एक लैंग्वेज है, दैट इज अ गूगल लैंग्वेज। दे नो ईच एंड एवरीथिंग। अगर उनको कुछ भी पूछने जाओगे और अगर वो कुछ आपको पूछेगा एंड आपने रिप्लाई किया, वो ऑन दी स्पॉट क्या करेगा? गूगल। अगर आपके पास नॉलेज नहीं रहा, सो ट्राई टू कन्वर्ट योर माइंडसेट फ्रॉम फिक्स्ड एंड डिफेंसिव टू अ। काफी लोगों का फिक्स माइंडसेट होता है। अगर मैं उनको बोलूँ कि बेस्ट एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे कोई LIC इंश्योरेंस बेचता है, LIC हाँ, जनरली मेरा काफी लोग बेचते हैं। मैं उनको पूछता हूँ LIC वाले को कि सर आप प्राइवेट इंश्योरेंस भी बेचते हो? तो जैसे ही मेरा पूछता हूँ वो खड़ा हो जाता, नहीं मैं लाइफ में नहीं बेचूंगा। मैं क्या बेचूंगा? LIC। आई एम नॉट अगेंस्ट LIC, बट जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट ए वन माइंडसेट। इंडिया इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, थिंक इन अ डिफरेंट टर्म्स। आई एम नॉट सेइंग, काफी लोगों को मैं IFS को मिलता हूँ, उनको पूछता हूँ इक्विटी म्यूचुअल फंड बेचते हो? नहीं मैं नहीं बेचता, वो रिस्की प्रोडक्ट है। वो रिस्की, वो बात ही नहीं सुनता है। बोले आई एम सेलिंग ओनली FD, इंश्योरेंस, गोल्ड एंड डेट फंड, दैट्स इट। इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात मत करना। सर अभी इंडिया में यू कैन नॉट डू अ बिजनेस विद अ फिक्स एंड डिफेंसिव माइंडसेट। एंड फाइनली दिस इज द फाइनल माइंडसेट। अगर इंडिया में आपको रहना है 5, 10, 15 साल, your mindset would be a rich mindset. Only mindset is a rich mindset. The best example. Are you in a which business, sir? Financial plan. Financial planner. Sir, are you in a which business? Financial planner. Are you in a which business? Are you in a which business? Now this is the real collective mindset. सबसे पहले बंदे ने क्या रिप्लाई दिया? फाइनेंशियल प्लानिंग। यानी एंड तक जाओगे लोग क्या जवाब देंगे? बस के भाई ये कंफर्ट वाला आंसर है। दिस इज वंस अगेन द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। नाउ दिस इज द another example of a rich mindset. Let's say I am in a equity business and someone asks me कि Hitesh, are you in a which business? So I am not replying कि भाई I am a stock broker. मैं एक ही चीज का रिप्लाई करता हूँ, सर आई एम इन अ वेल्थ क्रिएशन। आई एम इन अ, लेट्स से कि आई एम इन अ इंश्योरेंस बिजनेस और कोई मुझे पूछता है आर यू इन अ व्हिच बिजनेस, आई एम नॉट रिप्लाइंग कि आई एम इन अ इंश्योरेंस एजेंट। माय रिप्लाई इज ट्रू, सर आई एम इन अ लाइफ रिस्क मैनेजमेंट बिजनेस। दिस इज द रिच माइंडसेट आंसर। आई एम इन अ, आई एम नॉट सेलिंग अ इंश्योरेंस एजेंट सर, आई एम इनटू अ लाइफ रिस्क मैनेजमेंट। सर यूज अ रिच माइंडसेट वर्ड। एंड बाय द वे ये लाइन आपकी बहुत अच्छी लगी कि पहले मैं पैसे वाला बनने वाला हूँ। दैट इज द बेस्ट क्वालिटी एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर यू हैव। क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं, सिर्फ क्लाइंट को पैसे वाले बनाने की बात करते हैं, खुद का क्या बनेगा बोले वो सोचा नहीं अभी तक। सर एज ए फाइनेंशियल योर एडवाइजर योर माइंडसेट शुड बी ऑन अ रिच। सर आपका 25 करोड़ का इंश्योरेंस होना चाहिए, मैं भी एक दिन लूंगा और आपका भी मैं करूंगा 25 करोड़ का। सर आपका भी 10 करोड़ का FD बनेगा, मेरा भी मैं 10 करोड़ का बनाने वाला हूं। योर लैंग्वेज शुड बी ऑन अ रिच माइंडसेट लैंग्वेज।
That is the opportunity with the market. So this is all about my presentation. एक हमारे पास अगर वीडियो है तो 4 मिनट का मेरे पास वीडियो है, only 4 मिनट. बट मेरा इस हमारे पास ओह ओके ठीक है, तो मैं केर भाई को भेज दूंगा, वो लिंक आप देख लेना. बट मेरा हिसाब से इस वॉल्यूम है. ठीक है, मैं यहाँ पे और दूसरी चीज है, ऐसे करेंगे, करते हैं ना सर. एक मिनट, आप करें, इतने करें इसको यहाँ पे. हाँ ये लाइन एक सीख के रखना. एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर लोगों को एक ही चीज बता देना, दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वर्सेस डिलेड ग्रेटिफिकेशन. सर मैं आज आपके सामने आया हूँ, तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आज आपको जो खुशी मिलने वाली है वो खुशी में पोस्टपोन कर रहा हूँ, बट इट्स कन्वर्ट इनटू ए डिलेड ग्रेटिफिकेशन और बड़ी वाली खुशी है. द डिफरेंस इज, कल ही मेरे HDFC के एक इवेंट में मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर मैं आज गाड़ी लेता हूँ 25,000 इंस्टॉलमेंट से, हफ्ते से, इंडिया में द मोस्ट पॉपुलर वर्ड इज हफ्ता. द पीपल लाइक ए वन वर्ड हफ्ता. उनको SIP वर्ड अच्छा नहीं लगता, दे आर कंफर्टेबल विद द हफ्ता वर्ड. गाड़ी मैंने लिया है थ्रू हफ्ता, दैट इज द इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. अगर वही बंदा कल 25,000 का SIP करता, देन इट्स कन्वर्ट इनटू ए डिलेड ग्रेटिफिकेशन. कल उसने खरीदा, वो i20 खरीदा, अगर 5-10 साल बाद खरीदता तो ऑडी खरीद सकता है. दैट इज द अपॉर्चुनिटी, इज द इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वर्सेस डिलेड ग्रेटिफिकेशन. लोगों को ये चीज समझो. It's a huge opportunity as per my experience, but I strongly believe in a one word, and this is one line given by Mr. C.K. Prahlad. आप C.K. Prahlad साहब को जानते हो? Yeah. He was a management thinker, expired in 2010, पद्मश्री पद्म विभूषण हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर. उनकी लाइफ में उन्होंने एक ही वर्ड यूज किया है, and my sincere request to all of you. उन्होंने एक ही चीज इंडिया रिलेटेड बताई थी कि फोकस ऑन अ नेक्स्ट प्रैक्टिसेस, नॉट ऑन अ बेस्ट प्रैक्टिसेस. फोकस ऑन अ नेक्स्ट प्रैक्टिसेस, नॉट ऑन अ बेस्ट प्रैक्टिस. कि पिछले 10 साल में लोगों ने क्या किया वो आप करने जाओगे तो आउट हो जाओगे. फोकस कहाँ करना है? सर कल ही मैं एक चीज देख रहा था, Next. Not on best, on next. फोकस ऑन अ नेक्स्ट प्रैक्टिसेस, नॉट ऑन अ बेस्ट प्रैक्टिसिंग. लोगों ने जो किया वो आप करने मत जाना, जल्दी बाहर निकल जाओगे. महाभारत देखा है ना सीरियल? बस उसका ही सीन है. अगर 5 मिनट आप ध्यान से सुनोगे तो आप, मुझे लगता है पूरा दिन आपने किया है ना, उसका ही समरी मिल जाएगी. द रोल ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर. लाइव बंद करो. बंद करो. ना तो जानते हो ना कृष्ण है. और सामने खड़ा है वो कौन है? दुर्योधन. और ये व्हाइट ड्रेस में है अर्जुन. ओके फाइन, तो कैरेक्टर तो आपको मालूम है.
real message now. Listen carefully. अच्छा ये तो बताओ पार्थ, कि जब तुम मेरी नारायणी सेना बन सकते थे, तो इस निहत्थे कृष्ण को क्यों मार बैठे? वसुदेव, युद्ध में योद्धा से अधिक महत्व सारथी का होता है। इस महायुद्ध में मुझे एक ऐसा सारथी चाहिए जिस पर मुझे संपूर्ण विश्वास हो। अपने आप को जिसे सुनकर मैं अपनी सारी चिंताओं से मुक्त हो जाऊं। तो ऐसा सारथी आपके अतिरिक्त और कौन हो सकता है वसुदेव? आप सारी दिशाएं जानते हैं, सारे मार्ग जानते हैं। आप मुझे रणभूमि में भटकने नहीं देंगे वसुदेव। क्या मैसेज है? इज अ सिंगल लाइन मैसेज। साथी की जरूरत है। सर उसको सारथी की जरूरत है, उसमें युद्ध करने वाले को नहीं चाहिए। वो एक ही चीज बोल रहा है कि सर मुझे कौन सा आदमी चाहिए कि युद्ध में मुझे भटकने नहीं दे। आई नीड ए एडवाइजर स्ट्रॉन्ग। दैट इज द रियल फिलोसॉफी एंड रोल ऑफ द फाइनेंशियल एडवाइजर। डोंट ट्राई टू प्रिडिक्ट अ मार्केट। कभी कोई मुझे पूछता है, रिसेंटली आई एम डूइंग अ सक्सेसफुल इवेंट अक्रॉस इंडिया जिसका हमने टाइटल रखा है मार्केट क्या लगता है। एवरी मॉर्निंग मेरी ये सेशन चलती है, ऑन एन एवरेज इज अ 45 मिनट सेशन। और मार्केट क्या लगता है वो इन्विटेशन से ही आजकल 500,000 लोग आ जाते हैं। दैट इज द रियल बेनिफिट एंड माय आंसर टू ऑल ऑफ देम कि मार्केट क्या लगता है उसका आंसर मेरे पास नहीं है। और वहां से मेरी इवेंट स्टार्ट होती है। एंड माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, don't try to predict any market, including FD, including insurance. क्या होने वाला है वो चीज पे मत जाओ, क्योंकि इंडिया में मुझे लगता है कि इंक्लूडिंग वॉरेन बफेट और इंक्लूडिंग मिस्टर रामदेव अग्रवाल, nobody knows about the market. They are master into only one thing, that is a discipline. और सर डिसिप्लिन को अगर आपकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक बनाते हो ने, then you will be a winner. So once again, best of luck for the next 5, 10, 15 years. Wish you all- Wish you a healthy, wealthy and prosperous life. And any question, any answer? मार्केट Or क्या any लगता है? question? Any question? Any question? I am here, no issue. मार्केट सर लगता है ऑलवेज इन माय टर्म्स मार्केट इज ऑल अबाउट ए बिजनेस। सीएफपी का मार्केट। मैं बिजनेस सीएफपी का मार्केट या बेस्ट क्वेश्चन। मैं खुद सीएफपी नहीं हूँ, बट मैं तो समझता हूँ इंडिया में एफपीएफसी से ज्यादा मैं केयूर भाई को ज्यादा जानता हूँ। और जनरली मैं इंडिया में कहीं पे भी ट्रैवल करता हूँ, कोई सीएफपी का पूछता है तो मैं नंबर इनका निकाल के दे देता हूँ कि भाई आगे की बात कर लेना। बट लास्ट ईयर जब मेरा विजिट हुआ था यूएसए का, तब मुझे लगता है कि इरिस्पेक्टिव एनीथिंग, मेरा उनके साथ काफ़ी बार बात चलता है। बहुत सारे मेरे दोस्त लोग बोलते हैं कि इधर मज़ा आता है 3 दिन उनके साथ बैठने में। मुझे बहुत इंटरेस्ट है उनके साथ पर्सनल बैठने में, उनके क्लास अटेंड करने में। बट द ओनली प्रॉब्लम इज मेरे 6 से 8 महीने तक के फ्राइडे सैटरडे बुक हो जाते हैं। दैट इज़ फॉर माई बिजनेस। तो रोजी रोटी पहले आती है। सो और इनकी भी क्लासेज आती है जनरली ऑन एन एवरेज फ्राइडे सैटरडे संडे। और मेरी इवेंट रहती है, मेरे सेमिनार्स अक्रॉस इंडिया बुक फॉर नेक्स्ट 5 to 8 months. But last year, after experience at the USA conference, I strongly believe that if you are in a financial services business, either into insurance, either into a broking, either into a mutual fund or FD, आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हो ने, but CFP is a must. क्योंकि उससे मैंने एक चीज देखा है कि वहां से आपकी माइंडसेट बदल जाती है। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। मेरे पास एक नेदरलैंड का IFA बैठा था, CFP, हम लोग डिनर में थे वहां पे। तो वो बोला था कि उसने खुद का कार्ड दिया, विजिटिंग कार्ड। हम लोग एक साथ एक्सचेंज कर रहे थे। तो अमेजिंग थिंग, ही वाज स्पेशलाइज्ड इन अ डिवोर्स केसेस। ही वाज स्पेशलाइज्ड इन अ डिवोर्स केसेस। और वो तो बोलता है हमारी हर एक केस रिलेटेड CFP मिलता है कि आपको रियल एस्टेट का CFP मिलेगा, डिवोर्स स्पेशलिस्ट मिलेगा, ये स्पेशलिस्ट मिलेगा। सो ह्यूज अपॉर्चुनिटी। मेरे साथ केन्या वाला जो बंदा था, एंड I think he is a president of the Kenya CFP Association. वो the number of CFP participant इंडिया से 10 times ज़्यादा साउथ अफ्रीका में, इंडिया से 10 times ज़्यादा नंबर ऑफ रजिस्टर्ड
CFP साउथ अफ्रीका में। अगले 5-10 साल में बेसिकली जो मोतीलाल जी एज ए चेयरमैन ऑफ दिस कंपनी भी बोल रहे थे कि पिछले 15-20-30 साल से financial businesses was depend only on a one thing, that is a relationship based activity. रिलेशन से ही चलता। आप इंश्योरेंस एजेंट पूछना तो बोले कि हमारे गुजराती में बोलते हैं कि हमारा पप्पा नहीं जोड़ लेता था એટલે અમે લઈએ જब that was the answer कि my father was doing a business with this agent so I am doing with or nobody care about the anything but अभी now it's convert into a knowledge based industries. My request to all of you, convert yourself into a knowledge worker. And और एक साथ बोल देता हूँ कि जो मेरा USA ट्रिप रहा था वहाँ से the biggest learning was focus on technology. सर्टिफिकेट आपके पास CF की है, that is the important thing. Use a different media and technology. और I think मीडिया का यूज करना है तो केयूर भाई को फॉलो कर लेना. मैं कहीं पे भी जाता हूँ उनकी जो फॉलो रहती है ना बहुत माइंड ब्लोइंग और कहीं पे भी उनका होता है मैसेज पहुँच जाता है थ्रू ट्विटर, थ्रू फेसबुक, थ्रू SMS. यूज अ टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज इज अ डेडली कॉम्बिनेशन फॉर आवर बिजनेस. बिलीव मी, फट जाएगा बाजार. A huge opportunity. So thank you and best wishes. और एक क्वेश्चन है सर. Yeah, sure. सर अभी आपने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दूर रहना और अभी बोलते हैं आप उससे कहीं Sir, this is the नहीं अच्छा question. It's a good answer. It's a good question. मैंने क्या बोला है? नेगेटिविटी से दूर रहो. वहां से इनवर्ड मत लो. आउटवर्ड तो कर सकते हो ना. आप न्यूज़पेपर तो निकाल सकते हो ना. आई एम नॉट सेइंग ने यू कैन बोला तो आप सर मेरी लाइफ में एक चीज समझ लेना. मैं मेरी आदत बता देता हूँ, शायद आपको भी काम आएगी. मैं इतना बोल रीच माइंडसेट पर बोल के अभी मेरे में इंटरनल इफेक्ट इतना बड़ा आ गया कि अगर मैं घर पे बैठता हूँ और मेरी बीवी कोई टीवी सीरियल देखती है ना और अगर 1 सेकंड के लिए भी कोई नेगेटिव, बिकॉज टीवी सीरियल इज बेस्ड ऑन द नेगेटिव, अगर एक नेगेटिव सीन भी आए ना तो मैं आगे के रूम में बैठ नहीं सकता हूँ. इतना भी मेरे पे इफेक्ट हो जाता है. मैं उससे रिवर्स काम करता हूँ. मैं लाइफ में क्या करता हूँ, मैं एवरी मॉर्निंग 5 to 6 न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ और मैगजीन आप बोलो जितने इंडिया में अवेलेबल है वो सब मैगजीन मेरे टेबल पे रहते हैं. बिकॉज आई एम इन सच अ बिजनेस कि अवेयरनेस मेरे पास चाहिए. बट व्हाट आई एम डूइंग, एवरीडे मॉर्निंग में मेरा मोबाइल लेके बैठता हूँ और कंटिन्यूस न्यूज ढूंढता हूँ कि कौन से न्यूज है कि जिसका मैं फोटो क्लिक करके आज लोगों को स्प्रेड करूं एंड रिलेटेड टू अ बिजनेस एंड रिलेटेड टू अ ग्रोथ स्टोरी. अभी आप समझ लो कि मैं फ्रंट पेज पे गया और वहां पे लिखा होगा कि मक्का में क्रेन गिर गई, मैं आगे जाऊंगा नहीं. भोपाल में एक LPG फूटा, आगे जाऊंगा नहीं. वो कल शिमला में ट्रेन गिर गई, आगे जाऊंगा नहीं. बट वहां पे मैंने जाके देखा कि 28 सितंबर को मोदी फेसबुक हेडक्वार्टर में जाने वाला है. तो भाई ये तो कुछ यूथ को ये अच्छा लगेगा. क्लिक करो, लोगों को भेजो. मेरे पास अगर आज भी मेरा मोबाइल चेक करना है ना, मैं बहुत सारे ग्रुप में हूँ एंड आई एम फेमस फॉर ओनली 2 थिंग्स. वन इज माई आर्टिकल और मैं लाइफ में एक भी आर्टिकल खुद नहीं लिखता हूँ बट मैं जो ढूंढता हूँ ना मैं जो ढूंढता हूँ ना वो मेरे से अच्छा कोई नहीं ढूंढ सकता है. एंड सेकंड इज आई एम फेमस फॉर माई वीडियोज. मेरे पास जो वीडियोस रहेंगे ना और 80% जो मेरे वीडियोस रहते हैं ना वो टीवी की एडवर्टाइजमेंट रहती है बट उसमें से मैं पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करता हूँ. सो माय रिक्वेस्ट कि आप पढ़ लो, कोई टेंशन नहीं है. बट उसमें से एक ध्यान रखना कि आपके क्लाइंट को कुछ पॉजिटिव भेजना है. यानी आपका दिमाग ही कहाँ चलेगा कि आप ढूंढोगे कौन से पेज पर आज है कि फोटो क्लिक करूँ. मेरा लड़का एवरीडे मुझे पूछता है कि डैडी ये मोबाइल लेके तू क्यों बैठता है. उसको बोलता हूँ भाई कोई न्यूज दे. द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ रिच माइंडसेट, a day before yesterday my son he is studying into a BBA first year, 18 years. देखना रिच माइंडसेट का बेनिफिट क्या होता है. बोले डैडी आपके काम की एक चीज आई है. बोले ये YouTube पे मैंने वीडियो देखा 3 days बैक एप्पल की कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होती है ना तो वर्ल्ड वाइड बहुत पॉपुलर है. जो 3 दिन पहले हुआ एप्पल के CEO ने किया. आप लोग नहीं देखते होंगे, आपके बच्चे श्योर देखते हैं क्योंकि वो ग्लोबली हिट रहती है. रात को एज पर इंडियन टाइम 8:30 को एक बार लाइव टेलीकास्ट था. फर्स्ट टाइम मेरा लड़का आके बोल रहा है डैडी ये क्लिप लोगों को दिखाना. एप्पल के CEO ने एक बार जो वर्ड यूज किए है कि टिल डेट एज ए एप्पल कंपनी डूइंग एक्सट्रीमली वेल ड्यू टू अ US ग्रोथ. बट नाउ ऑनवर्ड्स एप्पल ग्रोथ विल डिपेंड ऑन इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया. इंडिया का स्पेसिफिक उसने नाम लिया.
उसने चाइना का नाम नहीं लिया, किसका नाम लिया है? इंडिया का। लास्ट ईयर बाय द वे हमने 6000 करोड़ के एप्पल के प्रोडक्ट खरीदे। तो एप्पल का सीईओ भी अभी इंडिया का नाम। सो दिस इज अ पॉजिटिव न्यूज। सो माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू के ओके, एनी क्वेश्चन? आपकी वेबसाइट नहीं सर, मेरी वेबसाइट नहीं है, मेरे वीडियोस नहीं है। WhatsApp मैं नंबर? ऐसे भी कोई मेरे दोस्त बुला लेते हैं, वहां पे मैं पहुंच तो जाता हूँ। आप प्रोग्राम्स के बारे WhatsApp में कैसे नंबर? पता लगे? व्हाट्सएप नंबर भी केयर भाई को टच में रहना नहीं है सर आपका ईमेल आईडी देंगे प्लीज। amalihites71@gmail.com malihites71@gmail.com। आपको कुछ भी प्रेजेंटेशन चाहिए तो आप मुझे मेल करना। इन्वेस्टर अवेयरनेस के मेरे पास बहुत सारे प्रेजेंटेशन रहते हैं एंड आई एम रेडी टू शेयर। So now what we thank you Hitesh bhai, thank you for such a exhaustive and learning presentation. We are very happy. I think it is one of the finest presentation of the day after Ashish bhai. So I will break for 15 minutes, quick break for 15 minutes for tea, and then we'll come back at 5 o'clock and then we'll complete the remaining journey. और कनेक्ट नहीं होना फेसबुक, आई एम अवेलेबल ऑन फेसबुक।